Let's start, sir. माइक्रोफोन कहाँ है आपका? स्पीकर पे नहीं गिर? Respected teacher and my dear friends, good afternoon to you all. Today we all gather here to present our view, and first of all I would like to my teachers who encourage to us to present our view in front of you all. So now I am going to start my presentation, and our topic is library and user defined function. So before starting the library and user defined function, first we have to discuss about the function. What do you mean by function? So function is a sub module of a program. Sir, continue. Function is a sub module of a program. Function is also the set of instructions perform a specific job within main program. Means function जो होता है वो जैसे मेन मॉड्यूल मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में हमें एक स्पेसिफिक यस So before starting the library and user defined function, first we have to discuss about the function. Function is a sub module of a program. Function is also the set of instructions perform a specific job within a main module. जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम अगर लिखते हैं और उस प्रोग्राम में कोई हमें एक स्पेसिफिक फंक्शन अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। और बेसिकली क्यू बेसिक टू टाइप्स ऑफ फंक्शन को सपोर्ट करता है। फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी फंक्शन एंड द सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो नाउ we are going to discuss about the library function. So these are the predefined functions which are provided by the QBasic, which are written at the time of development of QBasic. Library function एक ऐसा फंक्शन होता है जो पहले से QBasic में प्रीडिफाइन है। मीन्स जब QBasic का जब डेवलपमेंट हो रहा था उस समय डेवलपर के द्वारा इस फंक्शन को उसी समय डिफाइन किया गया, इसलिए हम लोग इसे लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। Programmer can use the function according to their requirement, and the programmer who programs who wants to perform a operation within a main module, then they use the library functions to perform the specific program.
There are two types of library function, mathematical library function and a string library function. So first we have to discuss about the mathematical library function. In mathematical library function, there are the numeric characters. We use the numeric characters to perform a specific operations. Some of the examples are here. First mathematical function are ABS function. These functions returns the positive value of the given negative value, but not vice versa. ABS फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम लोग देते हैं उसका रिजल्ट हम लोगों को निगेटिव देता है, लेकिन ये वाइस वर्सा इसमें पॉसिबल नहीं होता है, मींस अपोजिट हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। अगर हम निगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर पॉजिटिव देंगे तो उसका निगेटिव रिजल्ट हम लोगों को नहीं देता है। ये फंक्शन एबीएस फंक्शन परफॉर्म करता है। एंड आवर सेकेंड फंक्शन इज VAL function, val function. This converts the string type numeric value into numeric type. Means अगर कोई भी अगर numeric value हम लोग string के अंडर में अगर देते हैं तो उसको एक numeric type में वो convert करता है। For example, syntax val number print 10 plus val अंडर पैरामीटर के अंडर 20 स्ट्रिंग पे अगर देते हैं तो हमें यह रिजल्ट 30 देता है। एंड आवर थर्ड मैथमेटिकल फंक्शन इज SQR फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ द गिवन पॉजिटिव वैल्यू। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू हम लोग देते हैं तो उसका स्क्वायर रूट वैल्यू हमें रिटर्न करता है। फोर्थ फंक्शन इज SGN फंक्शन and this function returns the 1 for positive value, -1 for negative value and 0 for 0 value. अगर सिंटेक्स SGN नंबर अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू अगर SGN और 128 देते हैं तो वो हमें 1 रिटर्न करेगा। अगर -128 देंगे तो हमें -1 रिटर्न करेगा। अगर 0 वैल्यू देंगे तो हमें वह 0 रिटर्न करता है। And our next function is EXP function. This function returns the exponent value of the given number. Syntax EXP number अगर देते हैं जैसे e to the power x होता है, मीन्स अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो वहां पे हम लोग EXP का यूज करते हैं। Our next function is log function. It returns the log value whose base is e of the given number. Syntax suppose log नंबर अगर देते हैं और log 2 का अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो वहाँ log 2 का रिटर्न करता है। And our last function is int function. This function returns the lower down integer value of the given fractional number. अगर हम नंबर अगर दे रहे हैं फ्रैक्शनल नंबर तो फ्रैक्शनल नंबर का जो लोअर डाउन वैल्यू होगा उसको वह रिटर्न करता है। int फंक्शन देते हैं सिंटेक्स में int फ्रैक्शनल नंबर में 12.2 देंगे तो उसका जो लोवेस्ट डाउन वैल्यू जो है उसको रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे 12 रिटर्न करेगा। अगर निगेटिव के लिए अगर हम बात करें तो -12 पॉइंट अगर 24 देते हैं तो यहाँ पे ये -13 रिटर्न करेगा क्योंकि इसका फ्रैक्शनल लोअर पार्ट -13 है। So that's all. Now I would like to invite Vishnu Sharma to continue this topic. Thanks Kumar Subham for giving me this opportunity to speak our next topic. And first of all, I would like to differentiate some basic difference between library function and user-defined function. So these are that a function whose prototype already defined in library function is called library function. मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें कि पहले से ही उसके प्रोटोटाइप को डिफाइन कर दिया जाता है या कि प्री डिफाइन किया होता है वो हो गया लाइब्रेरी फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन द फंक्शन व्हिच इज क्रिएटेड बाय यूजर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है वो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन।
swap function, sum function, and in library function, the example library function is printf function and str copy function. Second difference is that in library function, we don't need to write any code in library function, but in user defined function, we have to write a code. In the other difference of library function is that the name of library function can be changed because its prototype is predefined in the compiler. And in user-defined function, the name of the user defined is not changed because its prototype is not predefined in the compiler. In every program, the library function must be compulsory, but in user-defined program, library function is not compulsory. And library function is decided by the developer, but in user-defined function, library user-defined function is decided by the user. And last, the difference of library function is that library function are the part of header file, but in a user-defined function, it is the part of a program. Now the next topic is library function. Library function. String library function. These are the alphanumeric character enclosed with quotation mark. वो इस टाइप के अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों से मिलकर बने होते हैं और वो कोटेशन मार्क के द्वारा क्लोज किए जाते हैं. Some of the library function are like lcase, ucase, mid string, left string, and lcase. क्या हुआ? lcase means ucase. आवाज आ रहा है? आ रहा है आवाज. Okay. ucase the function which converts the given string into uppercase. मतलब ऐसा कोई भी मतलब स्ट्रिंग में अगर लोअर मतलब स्मॉल लेटर में अगर कोई कैरेक्टर दिया तो उसको वो अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, इसे हम यू केस कहते हैं. और एल केस स्ट्रिंग द फंक्शन कन्वर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग इनटू लोअर केस. मान लीजिए अगर कोई भी कैरेक्टर अगर आपको कैपिटल में दिया हुआ है स्ट्रिंग के अंदर तो उसे वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, इसे हम एल केस कहते हैं. नेक्स्ट इज लेफ्ट स्ट्रिंग. लेफ्ट स्ट्रिंग द फंक्शन रिटर्न्स द डिजायर्ड नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड. ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमें मनचाहा कैरेक्टर्स देता है फ्रॉम लेफ्ट साइड से. जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग में स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और फिर 4, तो लेफ्ट साइड में जो 4 कैरेक्टर्स हैं शुरू पे वो हमारा मनचाहा डिजायर्ड कैरेक्टर होगा लेफ्ट साइड से STUD. एंड नेक्स्ट इज मिड स्ट्रिंग फंक्शन. द फंक्शन रिटर्न्स द डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिड ऑफ द स्ट्रिंग. वैसा मतलब कि मनचाहा कैरेक्टर जो हमें किसी भी स्ट्रिंग के मिडिल में से प्राप्त हो जाए वैसे कैरेक्टर को मिड स्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल है कि मिड स्ट्रिंग स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस 9, 2. तो मिडिल में अगर देखेंगे तो स्टूडेंट से अगर हम काउंट करते हैं तो मिडिल में ऑफ आता है जो कि 2 कैरेक्टर से बना हुआ है, तो ऑफ जो है हमारा ये मिडिल डिजायर्ड कैरेक्टर हो जाएगा. और नेक्स्ट है लेन फंक्शन. इसको लेंथ फंक्शन बोलते हैं. द फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस. ऐसा फंक्शन जो कि सारे कैरेक्टर और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो स्पेस है सबको काउंट करके फाइनल रिजल्ट देता है, रिटर्न करता है किसी कैरेक्टर का, तो उसे हम लेन फंक्शन कहते हैं. जैसे कि प्रिंट लेन स्टूडेंट ऑफ CS मतलब स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो इसमें जो भी कैरेक्टर है विथ स्पेस अगर हम काउंट करें लेफ्ट टू राइट तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 13 एंड दिस इज द फाइनल character. So that's all, and now I would like to invite my other team member whose name is Ritik Kumar. Ritik, you can start the next topic.
Good afternoon to everyone. Today I am here to discussing my topic, and my topic is left string. The function remove the blank space from left side of the given string. इसका मतलब है कि L string वहां पर हम यूज करते हैं अगर लेफ्ट साइड में अगर ब्लैंक स्पेस खाली है तो उसको रिमूव करने के लिए वहां पे यूज करते हैं, और राइट स्ट्रिंग वहां पे यूज करते हैं। राइट स्ट्रिंग है द फंक्शन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। राइट स्ट्रिंग वहां यूज करते हैं जहां स्ट्रिंग के राइट साइड में ब्लैंक रहता है, उसको यहाँ से हाँ रिमूव करने के लिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ASCII. The function return the ASCII value of the given string. It should be ensured that it returns ASCII value first character of the string. First of all, ASCII value, the full form ASCII value is American Standard Code for Information Interchange. यहाँ पे ASCII value का मतलब है कि हर एक कैरेक्टर का ASCII वैल्यू होता है। अगर यहाँ पे शुभम लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट लेटर का ASCII वैल्यू प्रेजेंट होता है, जिसके एस है, एस का 83 होता है, और यहाँ CHR डॉलर है। द फंक्शन कन्वर्ट द गिवन ASCII वैल्यू टू corresponding कैरेक्टर, यानी कि यहाँ हर एक डिजिट का उसका कैरेक्टर दे देते। यहाँ पे 83 लिखा हुआ है, उसका CHR डॉलर एस होगा। थैंक यू एवरीवन। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल स्लाइडी गोविंदा। Thank you, Ritik. Hi guys, good afternoon. So here my topic is space. This function create blank space. Means कि space सुनते ही अपने दिमाग में आता है कि स्पेस यानी कि ब्लैंक स्पेस या कोई भी नॉर्मल स्पेस होना चाहिए। तो ये फंक्शन एक तरह का है जो स्पेस क्रिएट करता है। इसका सिंटैक्स है स्पेस और फिर ब्रैकेट में नंबर, जितना स्पेस देना होगा उतना नंबर। जैसे एग्जांपल की यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा कुमार शुभम, प्रिंट कुमार प्लस शुभम, और इसका रिजल्ट है कुमार शुभम, इसमें बीच में एक भी स्पेस नहीं है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रिंट कुमार प्लस स्पेस ब्रैकेट में 2, यानी कि दो स्पेस यहाँ पे क्रिएट होगा, उसके बाद प्लस शुभम। तो देखिए यहाँ पर सेकंड में कुमार, फिर 2 स्पेस, तो डॉट को स्पेस से डिनोट किया गया है ताकि आप लोग को समझ में आए कोई स्पेस, इसके बाद शुभम। देन स्ट्रिंग, string. It repeat the give character of the desired number of time. मतलब कि ये कैरेक्टर को रिपीट करता है। स्ट्रिंग एक तरह का फंक्शन है जो कैरेक्टर को रिपीट करता है। इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग नंबर ऑफ टाइम कैरेक्टर, यानी कि जो भी कैरेक्टर को जितना टाइम रिपीट करना होगा स्ट्रिंग, उतना टाइम उसको ब्रैकेट में उतना देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल है प्रिंट स्ट्रिंग 5 और रवि लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 डॉट रवि। तो देखिए इसका रिजल्ट आया है 5 टाइम आर लिखा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर हरीश। Good afternoon, all of you. My name is Harish Kumar, and so there is instr function. This function is used for searching a string, searching substring in the given string, and it returns the character position in the given string. So syntax is there. So my turn.
62, sir. So syntax is there. Print INSTR. So first is a start position, and again in the inverted comma. Under inverted comma string is there, and what we have to found is the THA, and output is there. It means that deep is the 8th position. We have to move to the next slide. So user defined function. We are also known as we know that library function is not enough to develop a program. So there is a second type of function is user defined function. So in this function, the user can create the program itself for achieving different tasks. By the it start with function and end with in function. So I would like to call Subodh so it can explain its example. You calling me? User defined function. The user defined function is created by the user itself within program from achieving different tasks. These functions are created by the programmer to perform a specific task when it cannot be performed by any live function. यूज अपने डिफाइन के लिए फंक्शन का उपयोग करते हैं फंक्शन और इंड फंक्शन से शुरुआत फंक्शन से होता है और इंड फंक्शन से इसका लास्ट होता है स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन फंक्शन सिंटैक्स इसका होता है फंक्शन और फंक्शन नेम और पैरामीटर स्टेटमेंट variable name variable function name int function example declare function product a comma b cls input enter the first value a input enter the second value b print product of two value product a comma b ind function product a comma b product a star b in the function. Thank you all for being patient listener. Have a good day.
सर आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, एक्चुअली म्यूट हो गए थे और सारे लोग तो हमको लग रहा है मोस्टली लोग ऑफलाइन आ गए हैं। अब कुछ ही बच्चे होंगे जो ऑनलाइन में हैं। तो आप लोग भी जो ऑनलाइन में हैं वो 2-4 लोग 5 लोग जो भी हैं वो लोग भी ऑफलाइन आ जाइए, है ना। यस सर, नेक्स्ट क्लास से आ रहे हैं सर। हाँ, आ जाइएगा तो ठीक रहेगा। तो फिर हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू ही कर देंगे, आपको लैपटॉप दे देंगे, कहेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए। वही अच्छा रहने के लिए आपको ऑफलाइन में रहना पड़ेगा। वही अच्छा रहने के लिए आपको ऑफलाइन में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सारे ग्रुप चाहते हैं कि यहीं पे प्रोजेक्टर के थ्रू हम लैपटॉप लगा के प्रेजेंटेशन दें, तो जितने ग्रुप मेंबर्स हैं वो सब लोग को ऑफलाइन मोड में प्रेजेंट रहना होगा, ठीक है। तो अगर रहिएगा फिर आपको मौका दे दिया जाएगा कि आप प्रेजेंट करें, ठीक है।